ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਪਲੇਟਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀਆਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਆਉ ਬਲਕਾ ਬੈਠੋ ਲੰਘ ਜੋ
ਘਰ ਕੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚਲੋ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦੋ ਫੋਨ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਬੇ ਬਾਬੇ ਆ ਜਾ ਅੱਗੋਂ ਮਰਦੀ
ये आपने नहीं आप ऐसा पूछो किधर बोल रहे तेरे बोल रहे ऐसा अपना पूछो ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਔਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸਦਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਿਮਸ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖਤਰਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਆਇਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਮੀਆਂ ਅਬਦੁਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਮਤਲਬ ਕਦਮ ਲਿਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। दूसरा मसला थाने का है, जिस टाइम किरायानामा लैके करते हैं तो वो भी पैसे चार्जेस करते हैं, वो भी डिस्ट्रिक्ट हाँ जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਾਏ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਲਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਓਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਬਾਹ ਆ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਚੱਕਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਅਖਬਾਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤੌਰ ਤੇ
200 रुपये चार्ज कर रहे हैं स्टान का। हाँ जी, ना देर की सूरज को चक्कर लगा। ਚੱਕਰ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਕਰਾ ਕਰ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਪਗਲਾ ਡਾਲਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ अच्छा डीलर हजरात अपनी सेफ्टी वास्ते अपने तफसात वास्ते गवर्नमेंट को की चाह रही है, कुछ सोसाइटी चाह रही है या मेडिकल मॉक चाह रही है? ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਬਾਅਦ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਲੈਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਸ ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਡੀਲਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਦਲ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਗਰ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਇਸੇ ਸੂਰਤ ਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੈਗੂਲਰਿੰਗ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 10-20 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ के आपने ये बहुत अच्छा एक लॉन्च किया प्रोग्राम। इसकी बहुत अच्छा ज़रूरत थी कि भाई एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है प्रॉपर्टी डीलर्स की, तो उनकी आवाज़ को, उनके क्या मसाइल हैं, उनको आगे पेश करने के लिए कोई हमारे पास प्लेटफार्म नहीं था। अभी इसकी वजह से ये कि प्रॉपर्टी डीलरों के भी अंदर भी कौन कर सकता है, उसकी कोई तरजीहात क्या हैं, उसकी क्वालिफ़िकेशन, उसकी किस तरह उसने काम करना है, उसका भी कोई हमारे पास लाया जो उठा उसने किसी तरह उसको अपने भी मसाइल थे और दूसरों के लिए भी इस तरह मसाइल बनते हैं। अभी इसमें आ जाएंगे कि उसने ये किया प्रॉपर्टी डीलरों ने, तो वो भी उससे सबक हासिल करेंगे। जो अच्छा काम करा हो उससे भी आ जाएगा कि उसने ये किया। ये प्रॉपर्टी डीलर एक बहुत बड़ा शोबा है। इसमें देखें करोड़ों लोग इसमें लाखों लोग हैं और लोगों के पास अरबों इसमें प्रॉपर्टी। जैसे रियाज है, उन्होंने छोटे पैमाने से शुरू किया तो एक हॉस्पिटल बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो प्रॉपर्टी तो बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसको इस्तेमाल करना या वो कैसे हासिल की गई है, ये सबसे बड़ा इशू होता है। तो इस तरह अगर इस तरह आप लॉन्च करेंगे अखबार के ज़रिए उनके मसाइल को भी, क्योंकि वो बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं, कभी उनको कुछ जब उनकी ये चीज़ें अखबार में आएंगी तो गवर्नमेंट भी इस पर तवज्जो देगी कि भी अगर वो इतनी मेहनत करते हैं तो उनको उनका तहफ़्फ़ुज़ क्या उनके जब कोई ऐसी रोज़ी नहीं है कि मुसलसल वो आ रही है या ऐसा वो दफ्तर खोल लेते हैं जिसके पास ज़्यादा पैसा वो इसमें कमा लेता है। जो आम प्रॉपर्टी डीलर जिसे कहते हैं उनकी मुश्किलात इसमें ज़्यादा है। तो इस तरह इसको आम किया जाए, अखबार के ज़रिए गवर्नमेंट तक इसको उनके जो प्रॉब्लम है उनको पहुँचाया जा सके और उसके कोई हल उसका तलाश किया जाए। ये आपकी या आप लोगों ने बहुत अच्छा एक काम शुरू किया, अल्लाह ताला इसको तकमील तक पहुँचाए। आमीन। खुशाल अली मेरा नाम है, हमजा स्टेट एडीएफ मेरा ऑफिस का नाम है। तो 2004 से हम इस फील्ड को एडीएफ को डील कर रहे हैं। एडीएफ स्कीम इन्वेस्टर के लिए, जेन्युइन बायर के लिए इस वक्त बहुत अच्छी स्कीम है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बेशुमार इन्वेस्टर जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बिजली, पानी, गैस सब मसले अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हल हैं। यहाँ पे बेशुमार करेक्शन हो चुके हैं, करेक्शन रिसेंटली मिला है। लेकिन पिछले 12-13 साल से इस स्कीम में जो मसले मसाइल थे वो कुछ हमारी कोशिशों से, कुछ महकमों की कोशिश से अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हल हो चुके हैं। और अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे अच्छा इस वक्त जो ट्रांजेक्शन हमारी प्रॉपर्टी की हो रही है वो अच्छी हो रही है। जो टैक्स वगैरह बाकी इस वक्त जो टैक्सेस हमारे बच्चों से आ रहे हैं वो हम उसमें बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि हमारे जो डीलर हज़रात के मसले मसाइल हैं उसमें बेशुमार ऐसी मतलब रुकावटें आ रही हैं, हमारी ट्रांजेक्शन रुक रही हैं टैक्सेस की वजह से। बेशुमार लोगों का रोजगार जो है वो ख़राब हो रहा है। टैक्सेस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हम लोग क्लाइंट्स को मतलब ये चीज़ क्लियर करते करते थक जाते हैं। लोग बेशुमार इस वजह से छोड़ के चले जाते हैं कि इतने टैक्सेस इतनी फीसें हम पे ही नहीं कर सकते। वो लोग जेल लेके आते हैं कि हम मतलब थोड़ा प्लॉट लेके 5-10 करोड़ का
का मजार बना लें। लोग ये जेल लेके हमारे पास आते हैं, जब उनको हम बताते हैं इसकी ट्रांसफ़र फीस, तो उस वक्त वो लोग टैक्सेस को मतलब इतना ज़्यादा वो परेशान होते हैं कि वो छोड़ के कर देते हैं। ये बहुत ज़्यादा मसला है, हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि टैक्सेस कम किए जाएँ। टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो गए, होने चाहिए टैक्सेस, गवर्नमेंट मतलब सारे सिस्टम को चलाना होता है, होने चाहिए टैक्सेस, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं कि गरीब आदमी जो बेचारा वो पिस जाए। ये चीज़ एनडीए के हवाले से भी मुस्लिम साहब एनडीए के वाले से मसले मसाला में बहुत ज़्यादा है। हमने प्लॉट ट्रांसफर करना है तो उसके लिए हमें 1.5 माह 2 माह धक्के खाने पड़ते हैं। हर एक 1 by 1 पॉइंट पे हमें रिश्वत देनी पड़ती है, 1 by 1 पॉइंट पे मतलब ज़राअत उठानी पड़ती है, 1 by 1 पॉइंट पे हमें मुस्लिम साहब जो है वो बेशुमार है। ट्रांसफर हमारे प्लॉट की इतनी आसानी से नहीं होती कि जिसको हम फर्ज करें कि हम किसी अपने लड़के को भेज देंगे जाके ये प्लॉट ट्रांसफर करवाओ, तो वो ट्रांसफर इतना आसानी से नहीं होता। बेशुमार जो हमें प्रॉब्लम करना पड़ता है।